रहा था, फिसल के गिर गया and I अच्छा। just accidentally landed on a wrong spot on my left shoulder, collarbone टूट गया and here we are. So I took the चाबी and I just threw it on her, but I threw it lightly. हाँ, पर she didn't react to my improvisation, so she's just there and like it hit her over here and she's like, फोन रख के मैं जूता निकाल के उसके पीछे भागा, आले सिर पे चढ़ जा मेरे, सबर नहीं है, वो शॉट रखा उसने, तो उसने पुलिस वाले को थप्पड़ मार के भाग गया। oh, पुलिस वाला जिप्सी ले आए, सब 3-4 लोग मेरे को पकड़ लिया, आओ बैठो, मैंने कहा मैं थोड़ी था। He's tricky. The Tricky Singh Show. फीवर 104 FM पे दिस इज द ट्रिकी सिंह शो और आज मेरे साथ फ्रॉम मुर्शिद आई हैव तनुज उर्वानी एंड आई हैव मिस्टर जाकिर हुसैन. वेलकम टू द शो. it's a pleasure to be here. Hope you don't ask us very tricky questions today. I usually ask people the moment I begin my interview I ask people what do you think, why is my name the Tricky Singh, any idea? Because you ask tricky questions, है ना? That's the first guess usually, but हाँ. actually it's because I really love magic and I'm a magician. You know, the very first thing I was meaning to ask you is I am pretty sure all your fans will also look at you and be worried कि आपके हाथ पे ये चोट कैसे आई, क्या हो गया है? मैं क्रिकेट खेल रहा था, फिसल के गिर गया and I अच्छा. just accidentally landed on a wrong spot on my left shoulder, collarbone टूट गया and here we are. How was it, the whole process of shooting? Was it very difficult for you? And did this happen after that? Yeah, luckily this happened right now, so हाँ जी. much after we finished shooting for the show. And मुर्शिद पे बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था because ज़्यादा से ज़्यादा हमने रियल लाइफ लोकेशंस पर, लाइव लोकेशंस पर शूट किया. ऐसे नहीं कि we cordoned off the area and stuff like we were. Life was going on in Mumbai city and we were busy shooting and getting on with our life as well, you know. So it was pretty challenging but also very exciting, right? Because जब आप एक like for example हम लोग आज शूट करें on a cordoned off set तो हमें पता है कि okay ठीक है, it's a controlled environment. हाँ जी. पर जब आप outdoor, especially मुंबई जैसे शहर में शूट करते हो, it's just it's mayhem, हाँ, you know. हाँ. तो कभी कभार हम लोग improvise करते हैं in the moment and this and that. So I really felt this took me back to a time जब मैं कॉलेज में था और हम लोग स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे. हाँ. It's really funny if you look at the old movies from the 80s and 90s. हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे हैं और पीछे पब्लिक, like even the public is part of the True, sequence, true. and I have also been part of that public, you know. Yeah. So it's really exciting that इतने सालों बाद I'm getting the opportunity to be on the other side of the fence Right. और लोग हमें देखने आ रहे हैं, you know. And it looked like you're a man of few words. And आज आपने कहा कि जितने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं ऐसा लग रहा है पूरे साल का एक बार में मैंने बोल दिया है. एक्चुअली हाँ जी. क्या है कि कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, हाँ जी. ये भी अपने आप में एक कला है, लेकिन मैं उतना अच्छा हूँ नहीं बातचीत करने में या बोलने में. मेरा जो अपना बिलीफ है वो ये है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए वो मैं दे दूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं करता हूँ. बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, अच्छा ये क्यों, अच्छा ये क्या, हाँ. ये क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ. हाँ. तो मुझे लगता है कि सब कुछ वही बता देगा तो फिर मैं क्या कर पाऊँ. That's true. हाँ जी. And इसको पूरे एक हिस्टोरिकल सेटिंग में किया गया है. इसका जब मैंने ट्रेलर भी देखा, आई एम प्रीटी श्योर कई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आज के टाइम पे हमें नहीं दिख रहे होंगे. So were there any things in terms of costumes or in terms of, you know, things that you saw around? It kind The of coloring also I was It watching. kind of that, reminds yeah. me of one of those really nice 90s noir Yeah. gangster films like Satya or Yeah. Company or something. You know, it's got that old world charm going on. And I think आज के ज़माने में like we tend to go for style over substance. हाँ जी, But हाँ जी. I feel like a show like Murshid, and also because Shravan sir is like a proper hardcore old school director. For him, it's performance first. It's not हाँ जी. about Dutch angle and Swiss pan and all that. It's about the performance. You know. और ऐसा कोई एक इम्प्रोवाइजेशन आपको याद है लाइक इंडिविजुअली जो आप तक रह गया इतने सारे इम्प्रोवाइजेशंस में, you know, in the career, कोई ऐसा एक इम्प्रोवाइजेशन जो I can tell you about this show also. I Uh-huh. mean, it's not a spoiler. It's on small scenes. So I'm married on the show and हाँ. come back. I've had a bad day at work. मैं घर आता हूँ, थोड़ी पी रखी है. हाँ. So just when I'm trying to find that घर का चाबी, I can't find it. तो मेरी बीवी दरवाजा खोलती है. And obviously she's not very happy, right? Because I'm हाँ. completely plastered. And then हम दोनों के बीच में थोड़ी अनबन होती है, थोड़ी conversation होती है. And then finally I just look at her and I had not told her. The girl who plays her name's Vedika. She's a very dear friend of mine. So I had not told her that, hey, listen, मैं ये करने वाला हूँ, because I felt like doing it at the moment. So I took the चाबी and I just threw it on her, but I threw it lightly. But- हाँ, but she didn't react to my improvisation, so she's just there and like it hit her over here and she's like,
So डायरेक्टर भड़क गई, अरे यार इतना अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है तनुज, आप भी करो ना। She's just like, सर आपके साथ कोई इम्प्रोवाइजेशन वाला, आई एम प्रीटी श्योर बहुत किस्से होंगे। पूरी जिंदगी इम्प्रोवाइजेशन में करी पड़ी है। थिएटर से लेके यहाँ तक सब इम्प्रोवाइजेशन। जैसे आज हम वो जो इंस्टेंट होती है, आज तो हम कहते हैं सीन चलो इम्प्रोवाइज करते हैं, तो हाँ जी। उसको इम्प्रोवाइजेशन कहते नहीं थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन उसको कहते हैं कि चलते शो में कुछ इंसिडेंट हो गया, उसको कैसे संभालना है विदाउट नोइंग टू द ऑडियंस और समथिंग। आपका को एक्टर या आप स्किप कर गए 2 पेज, कैसे उसको वापस लाके फिर दो, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। और आपको दिया गया कि आप समंदर किनारे खड़े हैं और कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, इम्प्रोवाइज हुआ है क्या ऐसा? दैट इज व्हाट इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल अबाउट। लेकिन चलते शॉट में हाँ जी। अगर मैं बताऊं आपको, एवरी फिल्म ऑफ माइन और ये वो सब सारी चीजें, राइट फ्रॉम दी सरकार टू वो चश्मा वश्मा करना, वो सब ऑन शॉट इम्प्रोवाइज था। हाँ। चाय वाय पीना लगा के हा ये सब ऑन शॉट था वो पहले से सोचा हुआ नहीं था, तो वो इम्प्रोवाइजेशन थी। वहीं चलते हुए शॉट में जब उन्होंने कहा कि आराम से करो, कोई बात नहीं, मैं कहा, ये लोग फिर आराम से करो। तो फिर वो चाय वाय का बजाना पीना वो सब वहीं दिमाग में आता गया और वहीं करते गए जी। हाँ। ऐसे ही और बहुत सारी फिल्में हैं। शागिर्द में एक शॉट है, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ इससे, और एक बंदा सामने से फाइल लेके सर्दी आ रहा है जा रहा है, लंबी बात हुई, फोन रख के मैं जूता निकाल के उसके पीछे भागा, आले सिर पे चढ़ जा मेरे, सब्र नहीं है। वो शॉट रखा उस फिल्म में है। ब्यूटीफुल। तो क्या होता है कि अब इधर से वो कुछ गैंगस्टर से बात कर रहा है, उधर से वो परेशान कर रहा है, इधर से वो, तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकाला, जूता मारा फेंक के मारा। ओह, तो दैट इज द थिंग। सम टाइम ऐसा होता है कि दोस्त यारों में थप्पड़ मार दिया, अच्छा ही इज नॉट रेडी, या ऑफ कोर्स, वो थप्पड़ मारा, उसको सेम रिएक्शन ही नहीं आएगा, खड़ा है जो। तो वो इस तरह की चीजें बहुत होती है, और हाँ। क्योंकि फिक्स करके करने की हमें आदत नहीं है, ब्यूटीफुल चीज आपने कही है। हाँ। तो उसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मजा भी इसी में आता है। हाँ। Like, जैसे इस फिल्म के इससे पहले हमने जो जॉनी जंपर की हाँ। है, तो उसमें डायरेक्टर बोले कि आप कुर्सी पे बैठे हैं, वो वहाँ खड़े हैं, मैं कहा नहीं खिड़की में बैठते हैं। हाँ, याद है yes, वो? yes, yes, sir, मुझे याद है। इधर है जी, सीन में नहीं था वो, तो ही मेड अ शॉट लाइक अच्छा, फिर इनको फॉलो करके लाता हूँ। हाँ। तो वो वहीं की वहीं आता है कि इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ जी। पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, और वो खिड़की इतनी चौड़ी थी उस पे, मैं कहा यहाँ करते हैं ना, हाँ। कुर्सी पे तो सारे ही बैठते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा ये हाँ। तो आप कुछ आड़ा टेढ़ा सा कुछ करते हैं ना जरा, मतलब स्क्रिप्ट से स्टिक नहीं होके अगर आप कुछ और पॉसिबिलिटीज लेके आए तो तो और है ही। बेहतर। वो तो हाँ, अब क्या yeah. लिखेगा, वो थोड़ी लिखेगा राइटर कि भी इंस्पेक्टर खिड़की पे बैठा है, वो तो कुर्सी पे ही लिखेगा। लेकिन वो है अतरंगी एक आदमी, कुछ Yeah. अच्छा ही। हाँ भाई, डायलॉग है, अगर क्या नाम है तेरा की वजह से अब ये तैयार है, क्या नाम है तेरा के लिए ना, हाँ, इधर हैं, हाँ, इधर straight away है। off guard. तो वो एक इंटरेस्टिंग कलर देता Yeah. है, हाँ, हाँ, मतलब सामने वाले एक्टर को भी आप थोड़ा सा सरप्राइज कर देते हैं, हाँ, हाँ जी। जो कि उस क्या कहते हैं प्रोमाइसेस में अच्छा लगता है। और ऐसे शॉट लंच ब्रेक के बाद करने में मजा आता है, बिकॉज़ थोड़ी नींद आती है ना, तो नींद यू आती वेक है। अप ना, हाँ, ठीक है यार, हाँ, हाँ ये भी टेक्निक और है यू मतलब। हैव टू बी अलर्ट यार। सर अभी जैसे आपने नाम की बात की, तो जैसे आपका जो रोल था जॉनी गद्दार में वो भी काफी इम्पैक्टफुल था, उसके बाद काफी आपके फैंस आपको उसके कैरेक्टर के नाम से बुलाने लग गए थे। शार्दुल। हाँ जी। तो ये कितनी बार होता है कि आपको जब भी कोई फैन मिलता है आपको आपके कैरेक्टर नेम से एड्रेस करता है? बहुत बार होता है, हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं थोड़ी पब्लिसिटी से दूर रहा हूँ, रहता हूँ, या ऐसा जानबूझ के तो मैं करता है, तो रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो फिर जो लेटेस्ट काम देखा होता है उसी के नाम से बुला लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनको ज़्यादा अच्छा काम लगता है, या जैसे रिसेंटली फर्जी में था वो नेता का, तो वो एक इम्प्रोवाइज्ड वो था कि राज इंडी की कहने लगे कि भाई ये
जय हिंद बोलेगा क्या, नमस्ते बोलेगा नेता बाद में, या थैंक यू बोलेगा? अच्छा। मैं कहा तीनों बोल देते हैं। तो वो एक ट्रेंड सा बन गया था, थैंक यू नमस्ते जय हिंद। अच्छा, हाँ। तो वो उस तरह से, अब मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग लगेगा ना। Interesting है। तो वो थैंक यू बहुत जो है एकदम मॉडेस्ट टाइप का हो गया। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते, हाँ वो नमस्ते हो गया, जय हिंद भी हो गया। मैं कहा तीनों तीनों बोलो मिलाई तो, दी। तो फिर Quirky हो जाता है। वो काफी उसके Yeah. रील वील बनाए लोगों ने, मीम्स बनाए। फिर मैं भी उनका दूसरा काम कर रहा था तो मिलने गया, तो बोले आपकी टी शर्ट बन के बिकी है, थैंक यू नमस्ते जय Oh, हिंद की। wow. Not That surprised. is beautiful. ये जो फैशन स्ट्रीट पे कहते हाँ भरा जी। पड़ा था थैंक यू नमस्ते जय हिंद की टी शर्ट। क्या बात है सर। एंड आई वांट टू आस्क योर एक्सपीरियंसेस जी। विद केके मेनन सर। Ah. वो कैसा था? Because So yeah. we never met for a reading or a joint narration or anything. I have never met KK sir outside of character without the long hair and दाढ़ी, and हमारे जितने भी scene थे it was present day based, right? Because that's where my हाँ जी। character grows up. Yeah. मैं बच्चा था in the past, and यार I was actually saying this to someone कि यार आप जब भी किसी हिंदी फिल्म पिक्चर सेट पर जाओ, स्पेशली मुंबई में जब शूटिंग चल रही है, 100-150 लोग रहते हैं, सो मच शाउटिंग, स्क्रीमिंग, केओस, राइट? बट जब केके सर जैसे अमेजिंग एक्टर कलाकार आ जाते सेट पर विद हिज लाइक यू नो वाइब, सब शांत हो जाते हैं, एंड सडनली यू फील लाइक आई वाज नॉट फीलिंग कि यार मैं एक नॉइजी सेट पर हूँ, आई फेल्ट कि मैं किसी नेचर रिट्रीट पर आया हूँ। तो यानी कि उनका वार्म अप टेक, या जो कहते हैं कैमरा रिहर्सल भी, दैट्स लाइक बेटर देन 90% ऑफ एक्टर्स आई वर्क हाँ विद। जी, हाँ सो जी। it really like it was an honor working with both Zakir sir as well as KK sir, like seriously. और आजकल ना सर बहुत अलग-अलग टाइप के खानों के ट्रेंड्स चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग चॉकलेट बिरयानी, दे आर मेकिंग गुलाब What? जामुन डोसा। आई नो टू इवन से इट इज वेरी वियर्ड। What is people? I know. आपने सबसे वियर्ड कौन सा फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है जो अच्छा लगा आपको? क्या था वो? I think one thing which I really like, जो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, that would be milkmaid और burnt toast. burnt Dude, it's toast। amazing. हाँ? बहुत yummy है, बहुत unhealthy भी है। I mean, तो burnt toast with something? milkmaid. With milkmaid? Milkmaid, yeah. उसको Oh. toast लो, उसको थोड़ा burn कर दो extra, काला हो What? जाएगा। Dip it in milk. I've never tried this. Is it really good? I like Would you really recommend this? I like Coca-Cola with vanilla ice cream also. How many times have you been mistaken for someone else? Many times, yeah. Uh-huh. Yeah, and What do you and the do? funny thing is, the people they mistake me for my friends only. Ashim Gulati, Akshay Oberoi, Taha Shah, इतने सारे. You know, sometimes recently someone came up to me and said, "Sir, you are amazing in Hira Mandi." आपको भी सर किसी के साथ कंफ्यूज किया गया है? Probably, perhaps जाकिर हुसैन जी के साथ जी भी। जी, वो तो बहुत बार हुआ है। हाँ जी, तो जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को कुछ हाँ जी। अवार्ड मिला था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यारी रोड पे रहता था, क्रिकेट खेल रहे थे मैं और मेरे दो दोस्त। हेलो, जाकिर हुसैन बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैंने क्या उखाड़ लिया? मेरा इंटरव्यू क्यों लेना है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अरे सर ऐसी बात कर रहे हैं, आप तबला बजाते हैं ना? मैं कहा हाँ थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ। मतलब सीखा भी था मैंने कुछ टाइम अच्छा। तबला, हाँ। ओह। तो मैंने कहा बजा तो लेता हूँ थोड़ा सा। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? उनको लगा मॉडेस्ट हो रहे हैं। तो अब बेचारे मेरे परेशान हो गए। मैं कहा एक्चुअली मैं वो जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं बोल रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि किसी कॉलेज से या बॉम्बे आईआईटी से एक बार फोन आया कि सर हमारा ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं कॉलेज के, हम आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। हाँ। तो मैंने कहा मैं उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं हूँ। तो आप कौन है? ओह। तो मैंने कहा वो सरकार वाला से। हाँ तो आप ही आ जाइए। मैंने कहा यार तो कुछ भी करोगे क्या? एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ था मंडी हाउस में, तब मैंने 2 साल तक दाढ़ी और बाल, बस 18-19 साल की उम्र थी, बाल छोड़ दिए, तो लंबे लंबे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई। मेरा एक दोस्त है जो राइटर संजीव दत्ता, उसके भी इतने लंबे लंबे बाल थे और दाढ़ी थी, और दोनों एक जैसे से लग रहे थे। हाँ। तो उसने पुलिस वाले को थप्पड़ मार के भाग गया। ओह। पुलिस वाला जिप्सी ले आए, सब 3-4 लोग मेरे को पकड़ लिया, आओ बैठो। मैंने कहा मैं थोड़ी था। सर एक फाइनल चीज खाली आपके साथ करना चाहूंगा। दिस इज लिटिल गेम, नेवर हैव आई एवर। ओके, नेवर हैव आई एवर स्लिप्ड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अरे ये तो
आपके साथ बहुत रिसेंटली हो गया है, पहला ही सवाल वो है। आप कभी ऐसे सेट पे एक्ट करते हुए कभी ऐसा हो गया है, स्लिप हो गए, एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? कि आपको लगता है कि अरे किसने देखा कि नहीं देखा, या उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन, आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ कर देते होंगे, कभी ऐसा हुआ है सेट पे? गिरते नहीं गिराते I don't think so. ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। एक इंसिडेंट मुझे, गिरने की बात नहीं है, मेरे साथ वो बड़ा फेमस है, मैं जब भी फुर्सत मिलती कहीं भी सो जाता हूँ। ओह, हाँ, तो ऐसे कई लोग, एक फिल्म कर रहा था, वेब सीरीज थी रणदीप हुड्डा के साथ, वो एसटीएफ के ऊपर थी ना वो, तो बस उनका शॉट चल रहा था, उधर सोफे में सो गया, उसने फोटो वोटो खींच ली थी। एक बार मैं वो वेब सीरीज, वेब नहीं, सिटकॉम कर रहा था, सैंडविच, तो मैं उधर पीछे की तरफ सोया हुआ था, उसका वीडियो बना लिया उसने, तो हम कपिल शर्मा शो में सब वीडियो बना रहे हैं आपके सोते हुए। कपिल शर्मा शो में कैसे दिखाया ये आप सोते रहते हैं, मैंने कहा हाँ यार क्या करें। तो आप कहीं भी सो जाते, कहीं भी नींद नहीं नहीं I आती also आपको? noticed this because हम जब वो दूसरी फिल्म पर काम कर रहे थे हाँ। तो सर अक्सर सो जाते थे, बट मुझे पहले लगा कि उसमें- मेडिटेट कर रहे हैं। उसमें क्या है ओह। कि अभी उनका शॉट चल रहा है, मेरी जरूरत नहीं है, तो क्या क्या फोन देखूं, क्या करूं, बेस्ट है। आई एम वेरी एनवियस ऑफ पीपल जो कहीं पे भी सो सकते हाँ हैं। यार। मेरे को बेड पे लेट के भी कई बार नींद नहीं आती घंटों तक। हमें इतनी तैयारी करनी पड़ती है ना यार, just to fool ourselves into sleeping. हाँ, 30th of August को guys do watch मुर्शिद, and I really wish कि ये इंटरव्यू कहीं पे कट नहीं होता, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस आप बता रहे हो और मुझे मजा आते जा रहा है। जी। But all the very best to you All guys. good things must come to an end, but Yes. I'm sure दोबारा हमारी मुलाकात होगी. Definitely. Looking forward to that. Definitely. Thank you so much. Thank you. so much. Thank you so much, sir. Thank Thank you.